You know, we are living in a society, we can call it pluralistic society. We are in a marketplace where people, they are offering the good things. Where the competition, एक मुकाबला है ना, एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर आप देखेंगे हर रोज आपको फ्लैग मिलते हैं, लीफलेट मिलते हैं. The shopkeepers, the markets, they are offering something good, and they believe that they are good in the market. In the same way, in that multi-faith society, where people, they are offering something, they are offering good things. I'm not saying they are bad. All the religion, they are good. But good doesn't mean that they are very good. No. Why I'm saying that? The reason behind that, what Christianity is offering, they are not offering. Christianity is unique. मुनफरद है मसीहत, और इसमें क्या मुख्तलिफ है, वो है the grace of God. खुदा का फजल. The Bible says, the Gospel of John chapter 1, it's a beautiful text. 18 में लिखा है कि फजल और सच्चाई को खुदा यीशु मसीह की मार्फत पहुंचे, लेकिन जो शरीयत है ये तो मूसा की मार्फत दी गई है ना, लेकिन फजल और सच्चाई किसकी मार्फत पहुंचे? यीशु मसीह की मार्फत. यहूदी जिससे बाकी जो रिलीजन है वो मुंसलिक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, even Jews, they are very proud of their religion. They are so arrogant. They believe that they're children of Abraham. But they cannot offer you this grace. They can offer you law, but they cannot offer you the grace. Islam is the fastest growing, no doubt in that. They are offering you 5 pillars. Islam के 5 सतून हैं. I don't want to go into that detail because I'm not preaching Islam. I'm not a preacher of Islam. But there are 5 pillars. जिनमें रोजा है, ज़कात है, नमाज है. They are offering that 5 pillars. That if you will follow these 5 pillars, you will be a good Muslim, and you will have a better life after that. If you are so good in that, you will enjoy the 70 beautiful women in heaven. कोई शरीफ आदमी वहां पर रहने के लिए तैयार नहीं होगा. Anyhow, but the Christianity is not offering you that kind of attraction. Nobody can fulfill the law. They are offering you law. Okay, there is a law. आप इसको फॉलो करेंगे तो आप खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहर सकते हैं. But nobody dare to say that we are offering you the grace. What is the beauty of that grace? ये खुदा की वो हमायत है, the favor of God which we don't deserve, जिसके हम हकदार नहीं हैं. Our Savior Lord Jesus Christ is not saying to you and to me, अच्छा भी आप ये करेंगे, then you will be saved. This is no demand. This is simple demand is obedience and faith. If you will be obedient to me, if you will be faithful to me, you will enjoy everlasting life. जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. That's the beauty of Christianity, the grace of God. In this morning, I had a very good experience. खुदा मौके देता है. I went to the market. आज मैंने कुछ फल लेने थे चर्च के लिए, हार्वेस्ट के लिए. तो मैंने उस बंदे को कहा जो फल बेच रहा था, मैंने कहा यार मुझे ये चर्च के लिए चाहिए, तो जरा अच्छे से फल देना मेरे को, because we are taking that in the house of God. तो
कहते हैं क्या वहां पे क्या है आज, आप पार्टी है वहां पे, ये बस फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैंने से कहा कि नहीं भैया, आज खास दिन है, हमारा त्योहार है, हार्वेस्ट संडे है। एंड ये आस्क्ड व्हाट इज दिस हार्वेस्ट संडे, ये क्या है? फिर मैंने उसको तफसील बताई कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं, गॉड इज क्रिएटर, ही इज द सोर्स of everything. So when we are taking these things in the church, we are acknowledging the providence of God. हम इसको वहां पर लेकर जाएंगे and we are sharing this truth with our people, and people, they will rejoice in that. That is the idea behind that. It's a day of thanksgiving. It's a day of gratitude. खुदा ने मुझे मौका दे दिया कि मैं उसके साथ अंजील को बांट सकूं। He was so anxious and I spent a couple of minutes with him because it was very crowded. And he gave me his contact. उसने कहा जी मैं चाहता हूं कि आप मुझे मज़ीद इस बारे में बताएं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। He was so kind to me. उसने साथ बात की, सीखा इस बात को। I'm so glad that there are a good number of people sitting in the church with their families, with their kids. And our children, they should know what is the meaning of this harvest. What is the significance of this harvest? We are celebrating Christmas. It's good. We are celebrating Easter, the day of resurrection, the day of Pentecost. But this is a great drawback. So many times we are ignoring other important days. So today I'm going to highlight, because we are having Holy Communion, but if you allow me, because that's a very, very important subject. अगर मैं आप किसी को embarrass नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद self assessment जो होती है बड़ी अच्छी होती है। अगर आप खुद अपने ज़हन में इस बात को सोचें, अपना मुहासबा खुद कीजिए कि यार ये क्या है, ये हार्वेस्ट क्या है? Why there are fruits and the vegetable and some symbol on that altar? These things are reminding us that there is a creator. God is creator. अगर हम कोशिश भी कर लेना तो मेरा ख्याल है कि मैं इस केले का जगह भी बना सकता, केला तो कहीं जाएगा तो। बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट ले आए, इंजीनियर ले आए, ओके जरा ये अनार बना दे, ओके तो भाई जी को काम करा दो मेरे को, अनार भी बना सकता। मैं सुबह शेयर कर रहा था मॉर्निंग सर्विस में, जरा सोचिए इस बात को कि अगर एक शख्स मेहनत करता है, द फार्मर इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ही इज प्रिपेयरिंग अ सॉइल, उसे जमीन तैयार कर ली, वो अपने को वर्कर को बुलाता है, अपने कॉलीग को बुलाता है, he's calling his brother or friend or son, go and bring that seed. और वो आके कहे, I'm sorry to inform you, there is no seed. कैसा वो महसूस करेगा फार्मर? How will he feel about that? Definitely he will be worried. I work hard. मैंने बड़ी मेहनत की है। अभी जब कहते हैं गोडी करना, मैंने जमीन को खोदा है, मैंने जमीन में से पत्थर चुने हैं। It's a hard work. And what you are saying that there is no seed? Oh, I'm sorry. There is no seed. तो आप क्या करें? There will be disappointment. That's the grace of God. ये खुदा का फजल है कि वो बोने वाले को बीज देता है। Go and plant that seed. And the beauty of that seed, there is a potential. उसमें एक खास कुवत पाई जाती है
बीज के अंदर, और हर एक बीज जो है उसके अंदर एक जंगल है। जब बोने वाला बीज बोता है तो उसको ये मालूम नहीं होता कि ये बीज किस कदर फलदार होगा। अगर हम सारी मेहनत कर लें, सब कुछ कर लें, अगर बीज नहीं है तो कुछ नहीं है। घर से आगे बढ़ते हैं, बीज भी आ गया आपके पास से सब कुछ हो गया, आपने जमीन भी तैयार कर ली, लेकिन अगर बारिश ना हो, पानी ना हो, तो फिर क्या होगा? वो बोने वाले को बीज देता है, वो आसमान से पानी बरसाता है। और you know the first rain that was very important in that culture, in Israelites, because that rain was showing that God is pleased with the people. खुदा खुश है लोगों से। अगर कभी कहर होता था, बारिश नहीं होती थी, it was a kind of the symbol that God is not pleased with the people. तो खुदा खुश नहीं है। कहर, if God is giving us seed, is giving us water, is empowering the people, go and plant a seed. बोइए, मैं बारिश बरसाऊंगा। ये खुदा का फजल नहीं है तो और क्या है? क्या हमें इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली ये बात मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मुझे अलाउ करें फिर होता है कि सर्विस बड़ी लंबी होती है, लेकिन मुझे अफसोस से होता है कि हमें कलाम को सीखना चाहिए और सीखते नहीं है। जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। कितना टाइम हम बाद में गप्पे लगाते, चाय पीते, कितना टाइम हम स्पेंड कर देते हैं। मैं कहता हूं यार जाओ, चर्च खत्म हो गया है, दूसरे लोगों ने आना है चर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कलाम को सीखें, it's just a matter of couple of minutes, but what you will take from here is so precious, so important. और मैं आपको बताऊं कि मैं जब सर्मन तैयार करता हूं, मुझे कम से कम 5-6 दिन चाहिए होते हैं एक सर्मन को प्रिपेयर करने के लिए। और आपको कितने मिनट चाहिए होते हैं सुनने के लिए? लुइसा विटनेस है, उसको पता है मैं कितना टाइम देता हूं। एक मेरी खास जगह कॉर्नर सोफा, उसमें बैठा रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, और उधर से जनाब वो जो है ना खिदमत हो रही होती है, इधर चाय ला दो, इधर पानी दे दो। शी इज सो काइंड टू मी, आई एम सो ब्लेस्ड। तालियां मुझे लिजा के लिए। आई एम लाइक ए ट्री, जिसको कोई नरिश करता है, उसकी परवरिश करता है, उसको संभालता है। I don't mind to say that sometimes I'm so lazy. लेकिन यह कि she is equally in that service. आज सुबह से हम दोनों आए हुए हैं मॉर्निंग सर्विस में भी। she was decorating the table with me, she was helping me, and she is perfectionist. वो थोड़ी सी ना इन चीजों पे अच्छा रही है। मैंने कहा यार ये कपड़े थोड़ी हैं अच्छा रही, केले का साइज ठीक नहीं है, इसकी लेंथ ठीक नहीं है, सेप ठीक नहीं है, इसको यहाँ लगाओ। मैंने कही तेरे कपड़े नहीं है, फ्रूट है, तो रहने दो, मेहरबानी करो, टाइम हो रहा है। But she is so committed. So it's a teamwork. When you are planting something, somebody is helping you, and God is with us. God is helping us. वो हमारी मदद करता है, वो बोने वाले को बीज देता है, पानी देता है। और आज जब हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन फार्मर्स को याद रखें। मैंने गांव में खिदमत की है, मुझे मालूम है कि सुबह 4 बजे 3 बजे जब लोग सो रहे होते थे, लोग सुबह से उठकर खेतों में जाते थे, काम करते थे। हम तो कहते थे 9 to 5 है ना, और सोते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, बट नेवर फॉरगेट दीज फार्मर्स। अगर वो मेहनत ना करे तो आपके सुबह ब्रेड ना मिले आपको टेबल पे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? We need to remember all these farmers. मैं क्विकली उन फार्मर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जब वो मेहनत करते हैं
उनके कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा कि वो सब्र करता है, फसल को बोता है, फिर सब्र करता है। और ये सब्र करना ये हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जो किसान है जब वो फसल बोता है, खुदा के पाक कलाम को देखिए तो इस बात को आप जानेंगे कि ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। सुनिए, याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी 7 में, बस आए भाइयों खुदा की आमद तक सब्र करो, देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। इसकी मेहनत है, इज वर्किंग हार्ड एंड यू आर स्लीपिंग। वो सब्र करता है कि कब मेरी फसल जो है तैयार होगी। ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन खुदा चाहता है कि तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदा की आमद करीब है। अभी तीन बड़ा खूबसूरत और तलावत किया कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। This the harvest is plentiful, but the laborers are few. We need to work in the field of our Heavenly Father. और फसल क्या है? वो फसल क्या है? ये जो लोग बगैर कलाम के मर रहे हैं, इनको हमें तैयार करना है। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। 8.5 अरब दुनिया की पॉपुलेशन थी, 8.5 अरब, और 1/3 जो है वो क्रिश्चियंस हैं। The good number of people, those who are hungry for the word of God. खुदा हमसे दुआ करें कि हमें इस फसल की तैयारी के लिए वो इस्तेमाल करें। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। We need to work with him. Harvest is great and he's coming soon. ये जो ईद है ना, it's very biblical. मैं जल्दी से सिर्फ 7 जो ईदें उनके बारे में बताऊंगा ताकि थोड़ा सा ये आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए आपके माइंड में, फिर हम बाकी शायद तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। And I want to be bilingual because it's good for our kids that they should learn that what is the harvest. There were 7 feasts according to the scripture in the Old Testament. Festival are the feasts. How many festival? 7. Children, how many festival? 7. The first festival, which we call it Passover, ईद फसा हम इसको कहते हैं. It was in the springtime, and that Passover was a reminder when the Israelites 430 years they were in the slavery in Egypt. The night when they left Egypt, it was a commandment that they should have the blood on the door spot. और खुदा ने कहा कि आप अपने दरवाजों पर खून लगाएं उस मरे का, और जब खुदा का फरिश्ता गुजरेगा, you will kill that angel of God, you will kill the firstborn of Egyptian, but you will set them free, the children of Israelites, they will not die. तो ये जो पहली ईद थी, फसल जो थी, पासओवर जो थी, ये इस बात की याद करी थी। क्विकली सेकंड जो फीस्ट ऑफ द फेस्टिवल, अनलेवेंड ब्रेड, बेखमीरी रोटी। खुदा ने कहा कि आप इसको अपने घर से खमीर को दूर करना। इट्स अ सिंबल ऑफ सिन, एंड जीसस क्राइस्ट, इसमें जितनी भी जो ईदें में एक अक्स पाया जाता है खुदा यीशु मसीह का, यीस्ट जो था, इट वाज अ साइन ऑफ सिन, एंड जीसस क्राइस्ट द सिनलेस लैम्ब ऑफ गॉड, उसकी जुबान में हरगिज छल नहीं था। उन्होंने इस ईद को मनाना था। दैट वाज देयर रिमाइंडर। द थर्ड वन इज द फर्स्ट फ्रूट, पहले फलों की ईद। और ये जो ईद है, इसका जिक्र हम
द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 10 में हम देखते हैं। और ये जो ईद है ये संडे को होती थी, थर्ड डे ऑफ निसन, जो पहला महीना है। तीनों ईदें ऊपर नीचे आती हैं एक ही वीक में। और ये यीशु के मुर्दों में से जी उठने की अलामत है। The resurrection of our Savior, Lord Jesus Christ. He became the first fruit among the dead. 1 Corinthians chapter 15, verse 20. St. Paul said that Jesus Christ became the first fruit. वो जीवने वालों में पहला फल हुआ। Then the Pentecost. ईद पेंटिकोस्ट, ये मसीह के मुर्दों में से जुटने के 50 दिन, पेंटिकोस्ट मतलब 50 दिन के बाद ये ईद जो है ये मनाई जाती थी। ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट हम जानते हैं कि ये चर्च की जो बर्थडे है, ये उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर भी रिसेंटली जो 5वीं ईद जिसको हम देखते हैं, निस्सिंगों की ट्रम्पेट, अभी आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले इसराइल ने इस ईद को सेलिब्रेट किया यहूदियों ने। और ये भी कहा जाता रोमन्स का कि 23rd ऑफ क्या हो गया, याद है किसी को? यीशु है, क्योंकि फर्स्ट थेस्सलुनीके चैप्टर 4 में कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो मुर्दे जी उठेंगे और नरसिंगा पीछे के साथ आएगा। सो दैट वाज एक्चुअली रिमाइंडर कि जिसको रैप्चर कहा जाता है। वो नहीं है कि मैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा जाऊं कि जो मुर्दे और जी उठेंगे, मैंने इसके बारे में सिखाया भी था, अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर आए चर्च में तो आपको ये जरूरी बातें याद रहेंगी। तो ये दर हकीकत उस बात की यादगारी थी। अभी एक जो हमला हुआ लंदन में सिनेगॉग में, तो उस दिन आपने बार बार ये न्यूज में सुना होगा कि वो एक दिन जो है खास आज वो मना रहे थे। एंड ड्यूरिंग दैट फीस्ट फेस्टिवल they had the experience of terrorism. तो दैट इज वो जो सरदार काहिन था वो साल में एक बार जाता था पाक तरीक मुकाम में और वो नजर गुजारता था, कुर्बानियां गुजारता था। दैट वाज अ रिमाइंडर ऑफ दैट। यू मे डे ऑफ एटॉनमेंट। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जो भी टैबरनेकल, खैमों की ईद, बहुत सी कहा जाता है कि यहूदी जो थे ये उस बियाबानी सफर को याद करते थे, खैमा इज्तिमा और खैमों में जब रहते थे ये उसकी याद में मनाते हैं। तो दिस फेस्टिवल, दिस फीस्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये कोई ऐसे नहीं जैसे वो हिंदुओं में जो मर्जी ईद मना ली तो आज ही है जी, आज हैलोवीन है जी, आज नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल day, and the biblical significance of this day. So always remember that God is our creator, He is our provider. वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है, and we need to be thankful for this day. हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना है कि वो हमारा पालनहार है। When you are bringing your gift, whether it's a fruit, it's a vegetable, याद जब मैं गाँव में काम करता था, खिदमत करता था, तो वहाँ पे जो किसान होते थे वो अपनी वेजिटेबल को, सब्जियों को, जो भी पहली फसल होती थी उसमें से वो लेकर तो आते थे हमारे पास कि भाई सब आप दुआ करें। Whether it's your money, it's whatever it is, जब आप खुदा के घर में आते हैं, आप लेकर आते हैं उसको, तो आप खुदा की कुदरत का, खुदा की मेहरबानी का इजहार करते हैं। आज स्पेशल जो थैंक्सगिविंग है, हार्वेस्ट ऑफरिंग है, ये हम पेश करेंगे अभी खुदा की हुजूर। और मैं चाहता हूं कि बेस्ट जो थैंक्सगिविंग है वो आप खुदा को दें। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, कंपैरेटिवली टू दैट इट्स नथिंग। खुदा से प्यार करना सीखें। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसमें से जो आप खुदा को देते हैं, ये बात याद रखें कि ये खुदा पे एहसान नहीं है। We are acknowledging that He is our creator, He is a giver। वो देता है, मुहैया करता है। और जब हम खुदा की बात में इस पर आने को हैं,
इस बात को याद रखें कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी देखना किया, उसको हमारे लिए दे दिया। इससे ज्यादा मोहब्बत को और क्या करेगा कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। हम शायद कोई फल, कुछ सब्जियां, कोई फूड के टिन, कुछ पैसे शायद हम खुदाओं को दे दें। That's not enough. हमें अपना आप खुदाओं को देने की जरूरत है। It's a beautiful story, and I will conclude with this story. There was a young lad. He was very poor. Shoes फटे हुए, कपड़े फटे हुए, dirty, penniless. When the pastor asked for that offering, elders, they were bringing the tray, the basket on the front. And that poor boy, he came with the elders on the front. And the pastor said, what I can do for you? Why you are on the front? And he said that, I'm very poor. I don't have money. And the pastor was amazed and said, oh, okay. It's all right. You don't need to worry. But he said, no, I want to give something. And the pastor said, what do you want to give? As you said that you are a poor boy, you don't have money. And he said, I want to offer myself. मैं अपने आप को देना चाहता हूं। इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट मेरे पास नहीं है। And you know that poor boy, he became evangelist. वो दुनिया का बहुत बड़ा evangelist बन गया। आज अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, you don't need to be ashamed. You don't need to be embarrassed. अगर हैं, well and good. लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आज इस हार्वेस्ट पर आप अपना आप खुदावंद को दे दें। That will be a beautiful gift. इससे ज्यादा अच्छा तोहफा और आप कोई नहीं दे सकते।